शार्क टैंक इंडिया पर हमारे शार्क्स के साथ जुड़ने आ रहे हैं अपग्रेड के को-फाउंडर एंड चेयरपर्सन रॉनी स्क्रूवाला। I come from a lower middle class background. And I think at that stage, what it taught me was the lack of any sense of entitlement in life. And I think that's really stood by me for the last 30 years in everything that I've done, both my work, professional, fun, hobby, all lives. My ratio of failures to success is 8 failures to 2 successes. If I hadn't had the 8 failures, my 2 successes may not have been as big as I would have wanted them to be. First 17, 18 years in Mumbai, I lived in a house in Grant Road. Total joint family, no attached bathroom. So the sense of privacy was not there, but the sense of collaborative working with my grandparents, my aunts, my parents, my brother and myself as one sort of joint family living together for the first 17 years. The school that I went to, called Duns Institute in Mumbai, actually, before I moved on to Cathedral a little later on, just again gave me that sense of humility. Today, I think about 15, 20 students I sponsor and give scholarships to at Duns Institute because I know exactly what it takes at that level to really stand out in the world. When I started my entrepreneurial journey, entrepreneurship was not like Startup India today. It is not that euphoria that was there. And second, I think for the first 8 years, there was no concept of me being able to raise external money. When we built UTV, especially in the movies segment, it was about being different. If I were to look at the 84 movies that we did at UTV, if you look at the brand coming out there, it was that we were pushing the envelope. We were being different, but we were telling stories in a commercial manner. And I think penny dropping moment was we have our foundation, the Swadesh Foundation, and we work with almost 1,200 schools and Anganwadis. Individual in rural India today does not feel he's in control. How do we change that? And that is by giving them a feeling that I have a control of my life. And you can only do that when you have basics and you have an income that you're not dependent on any grant or dole or government. And I think that's our philosophy of how we approach the Swadesh Foundation. I know education is a big word. It's a word where you feel, okay, it's your calendared event. Nobody has a 14-year-old, so what are you doing? You assume he's educating himself. When you're at 21, people can start asking you, what are you doing? So we are in the what are you doing in your life? What are you doing with your life segment? That's what Upgrad stands for. I've seen quite a few of the shows, even the Sharks. They've kind of owned the chair they sit on, if I can say that. At the end of the day, the message is very clear. We're here to support you, but we're here to question you. Don't take us for granted. And we could send you back with more ideas. And a no does not mean a reject in life. And I think that's the exciting part about the program. I think the camaraderie and the surprise of what walks in through the door is always lovely. Nice. You settled in now, right? I mean, yeah, you've got comfortable. I've gotten comfortable. They've been very easy. Nice, very nice. It's a beautiful set, I think. Yeah. No, it looks good also. हाय शार्क्स, क्या आपने कभी बकरी को गाय के दूध पीते हुए देखा है या कैमल को डोंकी का? पूरी दुनिया में सिर्फ हम ह्यूमंस ही ऐसे स्पीशीज है जो रोज दूसरे जानवरों का दूध पीते हैं। कहते हैं कि ह्यूमंस को एक एज के बाद दूध की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन हम ह्यूमंस सालों से रोज दूध पीते आ रहे हैं ये समझ के कि दूध में कैल्शियम होता है। शार्क्स, आज 70% लोगों को ये भी नहीं पता है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और इस दूध हम रोज पीते हैं, इसमें बहुत अडल्ट्रेशन होता है। इस दूध का एक हेल्थी एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है प्लांट बेस्ड मिल्क। लेकिन इंडिया में पहले ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं था, तभी उसका अवेयरनेस उतना नहीं था और इसको टेस्ट करने पर उसका टेस्ट उतना पसंद नहीं आती थी और इसका फंक्शनैलिटी भी बहुत पोर था। इसको बॉयल और कुक करने का समय में वो फट सकता है। शार्क्स, जब हम यूएस में पढ़ रहे थे तो हम सबसे बेहतरीन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को ट्राई किए और हम चाहते थे कि इंडियंस को भी उन जैसे प्रोडक्ट्स टेस्ट करने को मिले।
तो हमने वापस आकर स्टार्ट किया ऑल्टको, ए प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव डेयरी एंड प्रोटीन कंपनी। तो शाक्स, मेरा नाम है बसंत पाटिल। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम ऋत्विक है और हम दोनों ऑल्टको की फाउंडर्स हैं। ऑल्टको में हम बेचते हैं ऑल्ट डेयरी। ऑल्ट डेयरी में हमारा ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, सोय मिल्क एंड रिसेंटली लॉन्च्ड ऑल्ट मिल्क है। ऑल्ट मिल्क भारत का पहला ऐसा दूध है जो दूध नहीं है, लेकिन स्वाद, टेस्ट, न्यूट्रिशन बिल्कुल दूध जैसा है। हमारा सारे मिल्क्स टेस्टी, हेल्थी एंड क्रीमी भी। और हमारा मिल्क्स के साथ आप सब कुछ बना सकते हैं जस्ट लाइक रेगुलर मिल्क। यू कैन मेक योर कॉफी, टी, खीर एंड पास्ता। हमारा दूसरा सेगमेंट है, which is our new segment, is our plant-based protein. In this segment, we have plant-based protein powder, ready-to-drink beverages, and also protein bars and energy bars. हमारा प्रोडक्ट्स दोनों ऑफलाइन एंड ऑनलाइन चैनल्स पे मिलता है। आज ऑल्टको इंडियन ओट मिल्क मार्केट का लीडर है। कोविड के बाद हेल्दी प्रोडक्ट्स का अवेयरनेस बढ़ गया है। ऑल्टको इस मूवमेंट का फोरफ्रंट पे रहना चाहता है। ऑल्टको इंडियंस को बेटर फॉर यू और बेटर फॉर द प्लैनेट प्रोडक्ट्स देने का विजन रखा है। तो शाक्स, हमारा आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। आप दूसरे जानवरों का दूध उन्हें ही पीने दीजिए एंड स्विच टू ऑल्टको। शाक्स, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारा मिल्क ट्राई करें। थैंक यू मैन, यू ब्रॉट मेरी कैटेगरी लेके आ गए बॉस। आपके लिए हमने coffee. हॉट कॉफी बनवाया विद आवर ओट मिल्क। This is to see the packaging. This oat drink is very nice. Yeah, it's very nice. How much is this box? 299. 299. My brother-in-law is lactose intolerant. My husband has been advised no gluten and dairy. ऐसे लोगों के लिए which of the milks would work? All of them would work. All of them would work. Yes. आपका एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये? तो हमारा कंपनी बेस्ड इन बेंगलोर है, लेकिन हमारा प्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ मिल्क मैन्युफैक्चर करते हैं वो पुणे के बाहर है। और उसके बाद ये को पैकिंग के लिए एक दूसरा बड़ा फैक्ट्री पे जाता है और को पैकिंग होता है टेट्रा पैक। मार्केटिंग कंपनी है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग? हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, हम मार्केट, हमारा कंपनी दोनों। और आप दोनों में से मार्केटिंग का ब्रेन कौन है? मार्केटिंग का ब्रेन हम दोनों ही है, बट लाइक ही इज द बिगर मार्केटिंग ब्रेन। He's the bigger brain. खास करके पूछ रहा हूँ बिकॉज दिस इज एन एडिबल एंड किड्स आर गोना हैव इट। Building the right credibility on this is going to be one of the most important things. Correct. If you wanted to go everywhere. ये जो alternative डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यू सेड यू आर द लार्जेस्ट प्लेयर, तो आपको कुछ मार्केट साइज का एस्टिमेट होगा यहाँ का एंड एज इन यूएस मार्केट फॉर इंस्टेंस? तो मार्केट साइज इंडिया में अभी नेसेंट मार्केट है। प्लांट बेस्ड डेयरी एंड प्रोटीन को मिला के शायद अराउंड 1000 करोड़ होगा। The biggest oat milk company in the world, its market cap is 10 billion. क्या नाम है उसका? और उसका 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसका नाम है ओटली। ओटली, that's right. इनकी शेल्फ लाइफ क्या है आपके प्रोडक्ट्स? तो हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स का शेल्फ लाइफ है अप्रॉक्सीमेटली 12 मंथ्स, जो फ्लेवर्ड मिल्क का कम है 6 मंथ्स। आई हैव अ क्वेश्चन, आई एम रीडिंग द पैकेजिंग। जो रॉनी ने कहा ना, ये बच्चों को दिया जाता है एज अ मदर ऑफ अ यंग चाइल्ड, तो मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ तो ऐसी रिफाइंड कोकोनट ऑयल, ऐसी सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा ऑन दिस। कैन यू एक्सप्लेन दैट? बिकॉज एज अ मदर हु डजंट अंडरस्टैंड डेयरी, मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ ये सब पढ़ के। हम कुछ क्रीमीनेस के लिए ये ऑयल यूज़ करते हैं। और सिर्फ हम नहीं, ये मार्केट जो अमेरिका, यूके, इंडिया, सब लोग गुड क्वालिटी ऑयल ज़रूर यूज़ करते हैं। डोंट यू थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑयल इन मिल्क थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कंज्यूमर वरी करेगा? पहले जो अल्टरनेटिव मिल्क्स थे उनमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स रहते थे, जैसे गम्स और इमल्सिफायर्स। हमने एक स्टेप आगे जाके अभी क्लीन लेबल बनाया है जिसमें गम्स और इमल्सिफायर्स नहीं रहते हैं। तो अगला स्टेप पे जो आप राइटली बोल रहे हैं कि कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड ही क्यों नहीं करते, वो भी बन सकता है, मगर वो जो प्रोसेस है उसको थोड़ा टाइम अडेप्शन पे लगेगा इंडिया में, और हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं। यूएस में जो सम ऑफ ओटली जैसे है वो कंप्लीटली क्लीन लेबल हो चुके हैं कि वो भी डालते हैं प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स वगैरह? उसमें सब है। You need to use the word milk. FSSAI guidelines
आप मिल्क का वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि तो ये मिल्क नहीं है। But this one says milk. So it's a drink. It's not MLK. So we just did a Oh, it word says play with it. MLK. I know. So your packaging is a little disparate when it comes to your It's a little. milk. तो हम लीगली जो पूरा दुनिया में क्या चल रहा है कि मिल्क नहीं यूज़ करने के लिए उस तरफ जा रहा है, तो इसलिए काफ़ी सारे ब्रांड जो है मिल्क निकाल दिया है पैकेजिंग से और ड्रिंक बोल के मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप ओट ड्रिंक बोलते हैं, आपको कंप्लीटली दूसरी दिशा में जाना पड़ेगा, कैटेगरी क्रिएशन की दिशा। व्हेन यू से ओट मिल्क, यू आर ऑलरेडी इन द कैटेगरी। अब वो स्टेप अलग हो जाता है कस्टमर के लिए, राइट? Correct. तो वो ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। उसको काउंटर कैसे करेंगे? काफ़ी सारा एजुकेशन है, कुछ जो लोग अभी कंज्यूमर्स है और थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। सिर्फ MLK बोल के इज इट ओके, कोशर है कि उधर भी प्रॉब्लम आएगी आगे जाके? No, उधर भी प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि you cannot display it saying Tagline here says MLK, that's not milk, and that is a slightly tricky But I tagline. think overall देखो कैटेगरी तो डेवलप हो रहा है, डॉक्टर्स Category है। रेकमेंड करते हैं, पीपल आर yeah. रीडिंग अबाउट इट, सोशल मीडिया पे एवरीबॉडी टेल्स यू ये चल रहा है, ये ठीक नहीं है। मेरे को पहले वो समझना आपका पूरा स्टोरी क्या है, आपने शुरू कैसे किया? तो हमने पहले एक बड़ा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बने, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया पूरा इंडिया में। हमने काफ़ी कैफेज को एटसेट्रा हमने पहला ओट मिल्क लॉन्च किया और फिर वो बड़ा कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन सडनली स्टॉप किया। तो उन्होंने स्टॉप करने के बाद हमें इमीडिएटली हमारे को इंडिया का फर्स्ट ओट मिल्क फ्रॉम स्क्रैच हमें 3 महीने में स्टार्ट किया, फ्रॉम डेवलपिंग द मिल्क टू पैकेजिंग सब कुछ। उसके बाद हमने कपल ऑफ इम्प्रूवमेंट्स किया। हमारे को बेंचमार्क आप कर सकते हैं कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट से। पैसा कहाँ से आया आपके पास? आपने डेवलप किया, आपने कहा यू लॉन्च्ड इट इन अ बिग वे, ये फंड्स कहाँ से आए? पहले बूटस्ट्रैप था, फिर हमने एक राउंड इन्वेस्टमेंट लिया। कितना किया, क्या वैल्यूएशन पे हिस्ट्री बता दो ना। So actually, our first round was at a 35 crore valuation. We've raised 8.8 CR. ये 2021 में किया? 22 में। ओके, एंड उसके पहले? उसके पहले हमारा खुद का पैसा था। आपने कितना पैसा डाला है बिजनेस में? हमने दोनों 2 crores ईच इन्वेस्ट किए थे। 2 करोड़, और वो पैसा कहाँ से आया? फैमिली ने दिए थे। दिस जून में हमने 6 crore का कन्वर्टेबल राउंड क्लोज किया। कैप क्या है उसमें? उसका एक्चुअली एक फॉर्मूला था हमने रखा, 3 months average GMV times 3, the average monthly revenue into 12 कब होगा वो कन्वर्ट? in April. एक्सपेक्टेड क्या है, क्या कैप पे होगा वो? 100 crore का वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हमारा रन रेट अभी अच्छा है। 20 crores you've invested totally. करेक्ट। It's all gone or हमारे पास राइट नाउ 2.5 crore मनी इन द बैंक है और हमारा स्टॉक्स एंड रिसीवेबल्स अराउंड 3 crores है। और प्लांट में जो इन्वेस्टमेंट प्लांट में हमने ऑलमोस्ट 3 crores इन्वेस्ट किए थे और R&D में और अराउंड 5 CR इन्वेस्ट। और पैसे बना रहे हो? अभी पैसा नहीं बना। Why don't you run us through your revenue and cost structure? Last month's net sales were 1.1 CR ओके, and our last month's burn was around 45 lakhs. वाओ। What was your sales last financial year and what do you expect to do this financial year? 22-23 फाइनेंशियल ईयर में हमारा अराउंड 1.5 CR नेट सेल्स था। ओके। Okay. और ईयर टू डेट अप टू नाउ हमारा नेट सेल्स है 6 CR। और कितना करोगे? दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टेड टू क्लोज अराउंड 10 CR नेट सेल्स और बर्न कितना करोगे आप? 5 CR बर्न करेंगे। उफ, तो कहाँ जा रहा है पैसा? CM1 में ही लॉस है आपका कि कहाँ है? यूनिट इकोनॉमिक्स समझाएंगे? So the unit economics 299 is the MRP and retailer margin is 90 rupees and the distributor margin is around 30 rupees and GST is 30 rupees और हमारा COGS है 80 rupees और वो होने के बाद हमारा सैलरी एक्सपेंडिचर है अराउंड 40 rupees ओके, और हमारा मार्केटिंग है अराउंड 15 rupees और डिस्काउंट्स इन प्रोमो अराउंड 20 rupees है। marketing ही तो हुआ, एंड तो है। प्रोमोज इज ऑल्सो मार्केटिंग। 35 रुपीज हो गया आपका करेक्ट। मार्केटिंग। रिटर्न्स, वेस्टेज एंड अदर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सब मिला के इट वुड बी अराउंड 20 rupees। तो हमारा काफ़ी और एक्सपेंडिचर्स भी रहते हैं, लिस्टिंग फीस। एंड लिस्टिंग फीस आल्सो आपने मार्जिन से नहीं निकाला है? नहीं नहीं नहीं, और वो मार्केटिंग में भी नहीं गिरे हैं, तो लिस्टिंग फीस अभी आपने काउंट नहीं किया, ये जो अभी तक बताया। करेक्ट। हाँ, वो हाँ। कितना % है? हमने अभी तक लगभग अराउंड 1.5 CR लिस्टिंग फीस में स्पेंड किया। अच्छा, इस साल कितना कर दिया है? इस साल हमने अबाउट 75 lakhs कर दिया। वाओ। वो आपने कहीं नहीं गिना अब तक? I put in other operational expenditure. अच्छा, वो लाइन आइटम आए नहीं अभी तक? तो पैसा तो खत्म होने वाला होगा आपका, कितना पैसा 2 बचा है? करोड़ है इनके पास। नहीं, but they're burning 45 a month.
See, I think your success is going to be when you have to market make. ये जो category शुरुआत है भारत में, और मुझे लगता है कि the maximum help you're going to need is for market making. You have to create a market and you have to build a market. And for that, one of the key ingredients is going to be कि you're going to need money. Because profitability तो होंगे. आप जब market खोल रहे हैं, तो you can't think of that and profitability on the same day. तो आपकी क्या सोच है ग्रोथ की? आपकी एम्बिशन क्या है? हमारा एम्बिशन है ऑफ कोर्स ग्रोथ, मगर हम बहुत ज़्यादा बर्न करके ग्रोथ नहीं. हमारा टारगेट है टू रीच टुवर्ड्स ब्रेक इवन विद इन द नेक्स्ट 8 to 10 months. तो ब्रेक इवन करेंगे और मार्केट मेक करेंगे, इसमें जोड़नी होती है ना. वी आर मेकिंग अ प्रोडक्ट एंड इफ इट्स अ गुड प्रोडक्ट व्हिच वी ऑल थिंक इट इज, वी हैव टू मेक समथिंग ऑफ इट. फॉर दैट यू नीड जिगर ऑफ अ डिफरेंट नेचर, यू नीड अ थिंकिंग ऑफ अ स्लाइटली डिफरेंट नेचर. हमारे को दोनों बैलेंस करना है कि हमारा रियलिस्टिकली जो है ब्रेक इवन भी चाहते हैं इन्वेस्टर्स. और आप कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे हैं कि कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं कि आपके लिए बना रहे हैं? तीनों के लिए शायद. तीनों की तीनों. As a mother, when I see ingredients like oil and all in a product, and this quasi milk, this confusing communication to a consumer, जहाँ बच्चे consume कर रहे हैं, a category around trust, I feel a little nervous about that. I really think कि trust business का, खासकर ऐसे business का एक बहुत important tenet है. तो आप please इसके बारे में, मेरी advice है, आप सोचिए. For that reason, I'm out. For me, the most important part is कि आगे की सोच क्या है, और I'm not getting your full vision. ये category building है, नहीं तो it won't go very far. And for that reason, I'm out. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ability to just sell your vision or clarity of vision is not there. मेरे हिसाब से you should get a strategic investor at this stage or a large institutional investor, because इसमें 50-100 करोड़ रुपए लगेगा. बिल्कुल. Who has done this business and maybe जिसने US में देखा है and who can be there with you for long term. I don't think मैं वो value add कर पाऊंगा, तो मैं बाहर हूँ. थोड़ा सा मुझे यही लग रही है प्रॉब्लम कि एक तो ये इंडियन कंज्यूमर के लिए अभी इतना बड़ा प्राइस, जब तक ये प्राइस 100 रुपए तक नहीं आएगा, मिल्क के जितना नहीं होगा ना, मूवमेंट बड़ी टफ है. अभी तो सबसे पहले इंडिया में ये कंफ्यूजन हो रही है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट भी लोगों को पता ही नहीं है, अभी तक पता लग रहा है. तो अभी बहुत जल्दी, आई थिंक यू आर टू अर्ली, मार्केट इज नॉट रेडी फॉर यू गाइस. तो इसी रीजन से मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली मुझे बाहर होना पड़ेगा. आई एम आउट. देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, what you have to tell yourself, आपको ये मानना पड़ेगा best product does not win. Correct. Right? आप कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, you have to sell it. जितने भी फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं entering this category of alternative meals, छोटा-छोटा शेयर रह जाएगा. The difference will be in the team जो इसको विजन को बेच सकती है compelling way और फंड रेज कर सकते हैं. Right? वो बात नहीं दिख रही है आज. Right? Everybody is telling you that. So that's why even I'm out. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Good luck, guys. Thank you. शार्क्स, चिप्स के बारे में सिर्फ एक चीज सुनी है आजकल कि चिप्स खाने से सेहत खराब होती है. मगर क्या आप जानते हो कि चिप्स खाने से एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है? ये जो चिप्स के पैकेट्स हैं ना, ये मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक या MLP से बनते हैं और इसका रिसाइकल करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है. और जो भी लोग इसे रिसाइकल करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो उसे जला रहे हैं या उसका फॉर्म बदलकर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं. एंड MLP सिर्फ चिप्स पैकेट्स में नहीं, ये बहुत सारे डे टू डे चीजों में यूज किया जाता है. हर साल इंडिया में लगभग 38 लाख टन्स ऑफ MLP प्रोड्यूस होता है, जो सीधा लैंडफिल्स और ओशंस की तरफ जाता है. यानी आपका कचरा बनता है सबका कचरा. पिछले 2.5 साल से हम हमारी छोटी सी लैब में पुणे में ये प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हैं और हमें एक तरीका मिल गया है. Hi Sharks, my name is Anish Malpani. मैं Without का फाउंडर हूँ और हमारी कंपनी Without हमारी पैटेंट पेंडिंग टेक्नोलॉजी से ये MLP के मल्टीपल लेयर्स सेपरेट करती है और उसमें से हम मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करके हमने ये बनाया है.
ये दुनिया के फर्स्ट रिसाइकल सनग्लासेस है जो चिप्स के पैकेट से बने हुए हैं। ये ऑल्सो हाई क्वालिटी, ड्यूरेबल, लाइट और रिसाइक्लेबल है। मगर सच यह है शार्क्स की सनग्लासेस अकेले इंडिया का वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाले, मगर इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दैट तुम MLP को भी ठीक तरह से रिसाइकल कर सकते हो। इंडिया में लगभग 15 लाख से ऊपर वेस्ट पिकर्स बहुत गरीब जिंदगी बिताते हैं। वो अपने लाइवलीहुड्स के लिए हमारे लैंडफिल्स में बहुत खतरनाक काम करते हैं। हम उन्हें हमारे कंपनी में फॉर्मलाइज करके उनको सम्मानित काम देते हैं और उनका जीवन बेहतर करते हैं। तो शार्क्स हमारी कंपनी विदाउट दिल से एक इम्पैक्ट फर्स्ट स्टार्टअप है। आज हम इधर स्ट्रेटेजिक, पेशेंट, इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स से जुड़ना चाहते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म विजन से सहमत हैं। हमारी आस्क इज 75 lakhs for 1% equity. आपने क्या बोला था? स्ट्रेटेजिक, पेशेंट, impact investors. And somebody who expects no return. I wouldn't say no return. I would say I that just joke. respect Anish. capital. Welcome to Shark Tank India Season 3. Thank you. MLP मतलब मल्टी लेयर प्लास्टिक, ये चिप्स का पैकेट है ना, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि अंदर एल्यूमिनियम रहता है और बाहर प्लास्टिक का लेयर रहता है, फिर उसमें उसके बीच में भी 2-3 लेयर्स रहते हैं, इसलिए इट्स इम्पॉसिबल टू रिसाइकल। क्यों आपने ये इतना बड़ा बोझ उठा लिया है कि MLP को दुनिया से एरेडिकेट करना है? तो मेरी स्टोरी में इंडिया में बॉर्न हुआ था। मैं यहाँ पर 9 साल तक था औरंगाबाद में। उसके बाद डैडी को जॉब दुबई में मिला। सो आई ग्रो अप इन दुबई। मेरी अंडरग्रेड मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास रॉस से की। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड था। इंटरेस्टिंग। फिर मैं न्यूयॉर्क गया। आई वाज मेकिंग वेरी गुड मनी। मेरे कंपनी में यंगेस्ट डायरेक्टर था। कौन से साल की बात है? 2016 की बात है। अच्छा, ओके। सब था मेरे पास, राइट, बट आई वाज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। समथिंग वाज मिसिंग। साउंड्स क्लीशेड, पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरा प्रिविलेज कुछ अच्छे के लिए करना है। एंड आई थिंक गरीबी इज अ मैन मेड सोसाइटल बेस्ड कॉन्स्ट्रक्ट। तो मुझे लगा मैं इस पर काम करूंगा। आई क्विट माई जॉब इन न्यूयॉर्क और उसके बाद आई स्पेंड द नेक्स्ट 3 years लर्निंग की इम्पैक्ट कैसे बनते हैं। फिर December 2019 आई केम बैक टू इंडिया। We have 1.5 to 4 million waste pickers in India. There's this 50 to 80% of the waste in India goes untreated. So I'm like, how can you increase the value of waste and use that to empower waste pickers out of poverty? फिर उसमें रिसर्च किया, खत्म हो रही है, प्रॉमिस। उसमें रिसर्च किया और फिर मैंने I learned कि ये स्पेस में there's not enough technology that works on fundamentally increasing the value of unrecyclable waste. और उसलिए हमने MLP चूज किया। Just one thing, this product could have gone anywhere. Why sunglasses? तो हमने रिसर्च किया MLP का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। हमने सेपरेट के लेयर्स, मटेरियल क्रिएट किया। फिर हमने बोला कि ठीक है, हमें मटेरियल बेचना है, बट देन यू फाइंड आउट कि कोई तुम्हारे से 5 किलो 10 किलो मटेरियल खरीदने नहीं वाला। Yeah. फिर हमने 400 प्रोडक्ट्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, उसमें से 70 शॉर्टलिस्ट किए, लुक्ड एट 27 डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक एवरेज Amazon सर्चेस, Amazon मार्जिन्स, टीम एक्साइटमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी। हमें कुछ सिंपल नहीं बनाना था। तो फिर सनग्लासेस फिट ऑल दोस कैरेक्टर्स वेरी वेल। सो मैंने मेरे खुद के 1.8 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए। Wow. फर्स्ट थिंग आई डिड वाज मैंने वेबसाइट बनाई। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, लेट्स फाइंड समबडी हु अंडरस्टैंड्स केमिस्ट्री। सो फर्स्ट पर्सन आई हायर्ड वाज अ PhD in electrochemistry, डॉक्टर जितेंद्र समदानी, जीतू। हम पुणे के लैब में February 1st, 2021 with 2 desks, 2 chairs, a stirrer and a packet of chips हमने शुरू किया ये काम। तो ये हमारी लैब है पुणे में। दिस इज हमने खुद ये रिएक्टर बनाया हमारे लैब में, जहाँ पर हमारी पैटेंट पेंडिंग प्रोसेस होती है। देन हम उसे एक एक्सट्रूडर में डालते हैं, जहाँ पर वो कंपाउंड होकर एक फिलामेंट आता है ऐसा, फिर उसको हम पैलेटाइज करके पैलेट्स बनते हैं। तो ये इंजेक्शन है? So now it's injection molded like this. किसी ने ये टेक्नोलॉजी ग्लोबली नहीं क्रैक की है या आप सिर्फ इंडिया में पहले हो? अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। आप सैंपल्स दे दीजिए तो कि हमको फिनिश और बिल्ड Yes, का yes. समझ में आए। ये क्या है? कोस्टर्स। ओके, You have a women's product? Yes, the Okay. cat eye. प्रोडक्ट आपके अच्छे। ये ग्लासेस भी इसी से बने हैं? नहीं, ग्लासेस हम जस्ट सोर्स करते हैं। Name and logo is pretty interesting thinking. What is the tonnage you consume in a year?
tonnage, nothing. We're an R&D perspective. So हमने अभी So तक right एक now, टन किया everything है. is in R&D. I'll tell you where we are, right? We just closed a round of funding. We were fundraising, we were delivering the orders. हमें 500 ऑर्डर मिल गए, हमें 3.5 महीने लगे उसको डिलीवर करने के लिए. 6 दिन में 500 सनग्लासेस सेल हो गए. 1 महीने में हमने 1000 सनग्लासेस सेल किए. And this was one color, one design, one brand nobody's heard of with कचरा. हमारा गोल है to sell like 1000 sunglasses a month. हमें 10-15 लाख रुपए मिलेंगे. It's good oxygen. So हमारे 3 prices है. 1000 rupees for the base model with not very great lenses. Then you have the slightly better lenses at 1599, and then you have the really nice lenses, the mirror polarized ones for 2500. We offer prescription and all of that as well. But after sunglasses, what? So right now, the most important thing हम कर रहे हैं, हम हमारा MLP recycling plant बना रहे हैं, जहाँ पर हम अभी 5 किलो daily recycle कर सकते हैं हमारे R&D lab में. We'll move to 50 to 100 kilos a day. Unilever has given us a 60 lakh rupee grant R&D के लिए. They like our process, they like our material. That's good. So the idea is to start doing proofs of concept. And now, जब मैं पीयूष के पास जाता हूँ या अमन के पास जाता हूँ, इसके साथ he will take me seriously, no? He's like, Yeah, I agree. तुम्हें बता कर दिया. Logical, smart move. What was the last round raised at? 4.9 crores we've closed. At what valuation? Cap was 52 crores and the floor is अगर 3 साल में हमने convert नहीं किया, तो then it's 30 crores में convert हो जाता है. Okay. And then the 1.4 million, हमारे पास एक lead investor है, हमारे पास एक non-binding term sheet from a foundation based in the UK आ गई है. What valuation? 64 crores. 12 crores at 64 crores, approximately. This was the plan. 64 crores pre-money हमें valuation पर करना था because हमें 20% से ज़्यादा dilute करना नहीं है. क्योंकि हमारा goal for the next 3 years इसके plant को हमें establish करना है. Then is to multiply this across India, across the world as quickly as possible, and not just MLP. MLP is our gateway drug, right? It's all plastics. The market for plastics is massive. And this is for profit that you're trying to build. So it's an impact first startup, and I cannot emphasize that enough. हमने एक private limited इसलिए form किया because I think it's a tool to be able to move from A to B. Private limited में it's faster, it's less bureaucratic than a non-profit, and मैं equity raise कर सकता हूँ. मैं non-profit में नहीं कर सकता हूँ आराम से. लेकिन आपको प्रॉफिट, यू डोंट लाइक प्रॉफिट. हमेशा जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, Yeah. थोड़ा सा आपका एक्सप्रेशन चेंज होता है, आप विंस करते हो. तो क्या प्रॉब्लम क्या है? We believe in maximizing impact by generating profit. We have to build a viable business. I do not believe in charity in the sense that handouts are not scalable. So this is an engine. 5 years later, what's the picture you have in your mind? You see it again in this So profit for impact, impact So for by profit, 2030, product. by 2030, want to be able to hire at least 10 to 15,000 waste pickers who we graduate out of poverty. That's one. The revenue would be about 3,000 crores if we can get to that point, right? And from a tonnage perspective, wanna recycle at least 20,000 tons a day. तो कितने हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट? It becomes a lot, right? But you want to be generating at least 30 to 40% EBITDA. इतने capex पे, how do you see that coming? You sell, the thing about commodities like this is that you are selling in large tons, right? So this is going to be a B2B commodity business in 5 years. So we're But actually, bro, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. Frankly speaking, you know, एक US में नहीं है वो Patagonia, Yes. they do it, right? Yes. And people actually, if you talk about the young generation, पहले कोई नहीं पूछता था, what are you doing for sustainability? What are you doing for the environment? एक टाइम होता था जब हम पटाखे उड़ाते थे, लड़ी बोलते थे, हम लड़ी उड़ाते थे. आजकल हमारे बच्चे पटाखे भी नहीं उड़ाने देते. So this new generation cares. I think this can itself be a crazy brand. So you hit a very interesting point. So our ambition with Without is not a B2C brand. And it's a not a beautiful B2B brand. ideology. It's a concept brand, Yeah, right? it is. Whenever Piyush or you put Without as a logo, Boat X Without, your customer is like, see, partnering with these guys whose whole DNA is ki boss sustainable Yeah, it is. environmentally It is. and socially. Yeah, it's a beautiful It's concept. like an Intel Inside strategy. Shall I make you an offer? Oh. 30 lakhs for 1%. Rest debt at 2 years at 10%. So first, I love what you're doing. Second, it will be difficult to work with you for some reasons. but I'm willing to take that risk. Thank you, Aman. I really appreciate I think यार तुमको थोड़ी और ठोकरें खानी to figure out which path to pick. R&D में अच्छा काम शायद किया है. I'm not able to validate that today.
क्योंकि आपने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ग्लासेस बनाए हैं, बट यू डोंट हैव एनी अदर लार्ज क्लाइंट्स बाइंग अ लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम यू, राइट? उसके लिए 75 crores is very, very difficult. Even 64 crores is very, very difficult. So I'm out. Good luck. As an investor, I am not sure how I will make money at a 60-75 crore valuation. So that's where I am getting stuck. For that reason, I am out. But genuinely great cause. Wish you the best of luck. Thank you, Rajesh. पहले तो I do like what you're doing. ये जो आप कर रहे हैं, this is real. ये measurable भी हो सकते हैं. पर ये जो आप टर्म शीट की बात करें उसकी वजह से बेंचमार्क नहीं हो सकते बिकॉज आई एम ओपन टू टेकिंग द बेट बट नॉट ऑन द बेसिस के किसी और ने एक टर्म शीट दे रही तो आई वुड लाइक टू मेक एन ऑफर फॉर 75 lakhs for 3%. All right. At 25 crore valuation. Thank you so much for that offer. If Ronnie wants to do this deal alone, I would step out. If you want another person in the deal, then I can join. Are you making an offer or not? I'm willing to tag along. Yeah. So let's just say Ronnie and Piyush have a combined offer of 75 lakhs for 3%, and Aman has an offer of 30 lakhs for 1% plus 45 lakhs at 10% interest for 2 years. What's your decision? Thank you, Aman, for your offer. I would love to supply you material for both. I'd really love to go with you guys. You guys are my dream sharks, so I really... Deal Pakki? Deal Pakki. Wow. Okay, you did That's without good. me. That's good. All right. Thank you. Thank you so much. Catch you soon. All the best, guys. Bye. Bye, man. Thank you so much. Good luck. Thank you. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम कीबो है. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम अक्षता है और मेरा नाम बॉनी है और हम को-फाउंडर्स हैं Trestle Labs Labs कीबो के। शार्क्स, क्या आप 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? कर ली. अब जो हमने आपको अभी पेपर दिया था उस पर जो लिखा है वो पढ़कर बताइए बिना आंखें खोले। जो आपने अभी एक्सपीरियंस किया वो दीपाली को कुछ साल पहले एक्सपीरियंस हुआ था। 2009 में 17 साल की दीपाली मराठी में बीए कर रही थी कि एक दिन अचानक उसने 1 हफ्ते के अंदर अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी। उसको जो बीए के लिए प्रिंटेड बुक्स मिलती थी अब उसे पढ़ने के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करवाना पड़ता था, जिसमें 4 से 6 हफ्ते लग जाते थे केवल एक 300 पेज की किताब में। कभी कभी उसकी किताबें उसे एग्जाम्स के बाद मिलती थी। और दीपाली से हम उसी टाइम मिले और तब हमने सोचा कि जब दीपाली ऑफिस जाएगी तब उसको उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ब्रेल और ऑडियो बुक्स में कौन ला कर देगा। भारत में दीपाली जैसे 2 करोड़ से ज्यादा ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है और जिन्हें शिक्षा और रोजगार का अवसर नहीं मिल पाता, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वे प्रिंटेड, हैंड रिटन या डिजिटल कंटेंट को इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ पाते। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया कीबो, हमारा AI पावर्ड पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को आपकी पसंदीदा भाषा में पढ़ के सुनाता है। तो शार्क्स, जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी आपके सामने रखे, आइए देखते हैं उसको कीबो कैसे पढ़ के बताता है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम कीबो है। मेरे नाम का अर्थ ज्ञान का पिटारा यानी नॉलेज इन अ बॉक्स है। मैं 60 भाषाओं में प्रिंटेड, हैंड रिटन और डिजिटल टेक्स्ट को पढ़कर सुना सकती हूँ और 100 भाषाओं में अनुवाद भी कर सकती हूँ। तो शार्क्स, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन, यूजर की हर एक यूनिक नीड के लिए कीबो के पास एक यूनिक प्रोडक्ट है। जुलाई 2019 से लेके अब तक कीबो ने 600 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस यानी स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज से जुड़ चुका है और 1 लाख इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर चुका है। ये कहते हुए मुझे काफी गर्व महसूस होता है कि कीबो इंडियन लोकसभा पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी सेटअप किया गया है।
और कीबो को इंटरनेशनल ले जाने के लिए और हर स्कूल, कॉलेज और ऑफिस तक पहुंचाने के लिए हम चाहते हैं आपका सपोर्ट एंड 60 lakhs for 1% इक्विटी, क्योंकि शार्क्स जब हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में होगा ये ज्ञान का पिटारा, तभी इंक्लूसिव बनेगा शिक्षा और रोजगार हमारा। बॉनी, अक्षता, शार्क टैंक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपने दोनों के बारे में बताइए। मैं फरीदाबाद, हरियाणा से हूँ एंड वहीं से मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद 2017 में डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर नाम के एक इंक्यूबेशन सेंटर में अप्लाई किया एंड वहीं पर मेरी मुलाकात बॉनी से हुई। अहमदाबाद से हूँ मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, एंड इन 2021 वी गॉट मैरिड। ओके, स्वीट। ओके, डेमो दे दे। डेमो के लिए हम हमारी कलीग जिनके बारे में हमने अभी पिच में बात की, दीपाली जी, उनको बुलाना चाहेंगे। बिल्कुल। नमस्ते शार्क। नमस्ते। मेरा नाम दीपाली है। हाय दीपाली। मैं नासिक, महाराष्ट्र से हूँ और मैं 100% ब्लाइंड गर्ल हूँ। ये कीबो एक्सेस किट है जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। ये एक बहुत ही पोर्टेबल होता है। ये एक वाटर बॉटल की शेप जैसा होता है जिसकी लेफ्ट साइड पे बटन है। इसे प्रेस करने के बाद ये टेबल लैंप की शेप ले लेता है। सेकेंड चीज, कीबो एक्सेस किट के साथ दी जाती है USB केबल, जिसे कीबो के साथ और अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना होता है। कीबो को यूज करने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है keybo.tracelabs.com। कीबो का होम पेज अब ओपन हो चुका है। मैं इसे कैप्चर कर लेती हूँ। Alert 1 picture captured. ओके, अब मैं इसे प्रोसेस कर लेती हूँ। Alert processing. Page 1 of 1. Natural resources and sustainable development. ये तो इंग्लिश में है। अपनी मनचाही भाषा में इसे ट्रांसलेट भी कर सकती हूँ। ट्रांसलेट के लिए यहाँ पे Dialogue, please कॉम्बो select your बॉक्स दिया जाता translation है, language. जहाँ पे मैं अपनी मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट करती हूँ। M-A-R-A-T-A-I. Select button. मेरी मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसे ट्रांसलेट करती हूँ। पेज 1 ऑफ 1, नैसर्गिक संसाधने आणि शाश्वत विकास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दीपाली, थैंक यू फॉर कमिंग टू शार्क टैंक। और आपका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, सो वेरी वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग। यस। हमारे सर कीबो प्रोडक्ट सूट के अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं। जो इंडिविजुअल्स के हमारे 2 प्रोडक्ट हैं, उसमें पहला है कीबो मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड की जाती है, जो कि एक लाइफस्टाइल और लर्निंग टूल है। यानी एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति अपने फोन में आए हुए PDF, वर्ड फाइल, इमेज, ऑडियो बुक पढ़ सकता है। साथ में हमारा एक वेब सॉफ्टवेयर है, जैसे अभी आपने देखा PDF अपलोड की गई, तो वो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यूज होता है ऑफिस में। एक्सेस किट हम लगाते हैं पब्लिक लाइब्रेरी में, स्कूल में और कॉलेज में। और जो हमारा 360 है वो हम सेल करते हैं एंटरप्राइजेस को, पब्लिशर्स को और यूनिवर्सिटीज को, जहां पर लार्ज स्केल में डिजिटाइजेशन का काम होता है। आपका टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? मुझे ये थोड़ी तकलीफ हो रही है। इज इट द UX जो आपने लैम्प टाइप का बनाया हुआ है, वहां पर आपका आविष्कार है कि फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी लेयर में आविष्कार है? अनुपम जी, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंटेड है और हमने एग्जिस्टिंग के ऊपर हमने अपनी लेयर बिल्ड की है, जिससे हम एक हाई एक्यूरेसी और हाई स्पीड आउटपुट दे पाते हैं। 4 चीजें कीबो में ऐसी हैं जो कोई अभी नहीं कर रहा है। इंडियन लैंग्वेज, हैंड राइटिंग, ट्रांसलेशन विद हाई एक्यूरेसी एंड ऑडियोटाइजेशन फॉर ऑल ऑफ दिस कंटेंट इन रियल टाइम, MP3 बना कर देना। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपका OCR कैरेक्टर रिकग्निशन जी अभी इंडिया में बेस्ट कैरेक्टर रिकग्निशन है? जी। ग्लोबली क्या आपका बेस्ट कैरेक्टर रिकग्निशन है? जी। तो फिर आपको शार्क टैंक पे आने की जरूरत नहीं होती। Something is not adding up for me. Sir, actually, Because character recognition आज की डेट में हर सॉफ्टवेयर में है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर ले लीजिए, बिलिंग ले लीजिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले लीजिए। तो अगर आपका OCR इतना स्ट्रॉन्ग है, then your use case is like you can just license this, right? जो आपने API या सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग की बात की, एग्जैक्टली अभी हम वही कर रहे हैं। अभी तक हमारा फोकस था स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरी में से लगाना। पर आप गूगल के पास गए, आपने बोला है कि I can do better OCR than you can. नहीं सर, अभी वहां तक जाने की तो नहीं हुई।
अब अपने नंबर्स, रेवेन्यू और प्राइसिंग दोनों समझा दीजिए। 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वी डिड एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ 22 lakhs, जिसमें हमें 5.5% नेट प्रॉफिट था। सेकेंड ईयर विच वॉज कोविड ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2021, वी डिड एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ 28 lakhs, जिसमें से 4% प्रॉफिट था। एंड थर्ड ईयर की हम बात करें विच इज़ 21-22 फाइनेंशियल ईयर, तब हमारा एनुअल रेवेन्यू था 36 lakhs, जिसमें हमें 7% का प्रॉफिट हुआ था। अभी जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं 22-23, उसमें हमने 1.35 करोड़ किए, जिसमें से हमें 26% प्रॉफिट जनरेट हुआ है नेट। एंड इस साल का अगर हम बात करें मार्च 2024, वील क्लोज एट 5 करोड़, जिसमें से हम ऑलरेडी 60% जो है अचीव कर चुके हैं अभी टिल डेट, एंड उसमें भी वील क्लॉक 30%। So when this consumer, what does he pay for this and what does an institution pay? आपका enterprise का क्या टिकट प्राइस है? तो हमारे इंडिविजुअल जो हैं वो हमारी मोबाइल ऐप लेते हैं, जिसमें मंथली 89 रुपीस एंड ईयरली 979 रुपीस रहते हैं। और ये 5 करोड़ में ये सब्सक्रिप्शन मॉडल कितना होगा? दैट इज 10% एंड B2B इज 90% ऑफ आवर रेवेन्यू। B2B is 90% of जी। तो कीबो एक्सेस किट के लिए हम चार्ज करते हैं 99,000 फॉर एनी इंस्टीट्यूशन पर ईयर, लाइफ टाइम। ओके। दूसरा जो है कीबो 360, जो कि एनुअल मॉडल पे है। फर्स्ट ईयर के लिए इंस्टीट्यूशंस 2.5 lakhs पे करते हैं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स एवरी ईयर 2 lakhs का रिन्यूअल करवाते हैं। 5 crore is projection this year. हाँ जी, उसमें से हम अभी 60% 60% अचीव 3 करोड़ कर चुके हैं। तो वो 3 करोड़ का ब्रेकअप बताना मुझे सेल का। 90% हमारा B2B से आता है। का ब्रेकअप। कस्टमर्स में अभी IITs, IIMs, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इवन टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस अगर भी एक हैं। बार एक ये डिवाइस ले लिया 2-2.5 लाख रुपए का, उसके बाद ओवर, राइट? नाउ व्हाट इज योर रिपीट मॉडल विद देम? जी, इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो एक्सेस लेते हैं विच इज अ वन टाइम पेमेंट, तो उसके बाद वो हमें पे नहीं करते। बट वो 99,000 वाला होगा। हाँ जी, 99,000। इसका स्प्लिट क्या है 99,000 का और 360 का? 360 हमने इस साल मई में लॉन्च किया है, तो 360 का जो रेवेन्यू है वो फिलहाल 10% ऑफ आवर टोटल सेल्स है। मतलब आपका 3.5 करोड़ रुपए जो रेवेन्यू है हैज कम फ्रॉम 300 क्लाइंट्स। तो आपके छोटे 300 क्लाइंट हैं जो आपको कभी फिर से पेमेंट नहीं करेंगे बिकॉज दे हैव ओनली बॉट वंस। इज दैट राइट? जी। सी दैट्स द प्रॉब्लम। इंडिया में बीपीओ इंडस्ट्री की साइज होगी आई डोंट नो $100 billion। उसमें से मेरा मानना है $40-50 billion विल बी मैन पावर। अगर आप उसमें 20% एफिशिएंसी भी ले आते हैं यूजिंग योर टेक्नोलॉजी, 10% भी ले लें, दैट्स अ $1 billion रेवेन्यू कंपनी। अगर आपका टेक वाकई में वो काम कर सकता है, व्हाई आरंट यू किलिंग इट देयर? तो लास्ट में जब हमारा माइंडसेट स्टार्ट हुआ था तब इट वाज वेरी नैरो, आई मीन इट वाज वेरी फोकस्ड। जब हमने पॉसिबिलिटीज देखी तो हमने रियलाइज किया कि एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, और इससे एक इंक्लूसिव इम्पैक्ट होगा। कीबो इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। Keebo is an inclusive product. And you are a tech company, as yeah, you we are said. a tech company. I think your heart is in the right place. Your mind is absolutely in the right place. All I would say here is for this product, while it's focused on the visually impaired, the two of you all will have to open your eyes a little bit more. Yeah. Because what you're doing for the visually impaired is fantastic, but what you think we can do with this product is going to be much wider. I'm happy to follow his lead if he's interested. Yes. Because I know what two of us together can do to add, to open your eyes and open the opportunity. Me and Ronnie can give you a combined offer. We'll just go at the back and discuss an offer and come back to you. But हम दोनों काफी keen है to invest in this. आप लोग बहुत नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हो. I have one reason not to participate, and that's because I think in comparison to the partners, खासकर Ronnie and Piyush together, I hope they give you a good offer. I will not as much value in the deal. I really think आपको थोड़ा ये जो commercial angle है उसके बारे में सोचना चाहिए. All the best, and now we'll make sure you get a good offer. आपने जो OCR Tech कंपेयर किया, you compared with the global majors. उनका वो फोकस ही नहीं है. जो फोकस कर रहे हैं एरिया में, इससे कहीं ज्यादा बेटर OCR टेक्नोलॉजी बन गई. टुडे मुझे ये लगता है आपका एक छोटा बिजनेस है और वही सेगमेंट में बिकता रहेगा. सो आई डोंट सी दिस बिकमिंग ह्यूज. आप जो टेक की बात कर रहे हैं ना, वो ऑप्टिमाइज टेक है. देयर इज वेरी लिटिल कोर टेक्नोलॉजी. दैट्स माय पर्सपेक्टिव. ओके. एंड सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. आई होप यू बिल्ड समथिंग बिग.
So me and Ronnie would like to come together. आपने मांगा था 60 lakh 1%. I think you are way early in that journey. There's no product And market fit. There's no product market fit, and we will have to work together to help you build strategy and to make this big. And it has to be worth our time. Our offer is 60 lakh 10%. And we will bring all the resources, reach, everything, and help understand and translate this business and proposition into something big. So that's our offer. आप लोग अगर 1.5 करोड़ कमा रहे हो, कुछ तो सही कर रहे हो। एक मेरी बस एडवाइस रहेगी, थोड़ा बड़ा सोचो। There's so many things you can do कि आपने टेक अच्छा बनाया। I would offer you 60 lakhs for 4%. Thank you. So that's changed the valuation quite a bit. आपकी जो लाइन थी कि यहाँ हम आए खाली पैसे के लिए नहीं, for value add also. So little bit you'll have to do that. Yeah, but you have to see ki who will be able to add value. Don't just restrict yourself. I can help you broaden the vision. And secondly, आपकी valuation बहुत खराब है। आप अगर चाहते हो तो मैं आपको और better offer देता हूँ 60 lakhs for 3%. We'll just come. Please, take your time. Yes, sir. वो तो Not valuation for के लिए the reason optimize you want to करेंगे। go, Raman. They will Not obviously here. go with valuation. They will. 30 crores. नमस्कार Hello. जी, बोलिए क्या करूँ? 10% will not be able to do. हमारा काउंटर रहेगा ऑल द 3 60 lakhs for 1.5%. Wow. 40 crore Wow. valuation. ये तो पेचीदा। I think now you're thinking the right terms. आपको 100% 5-6 करोड़ की वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए। Fight for it. But अभी मैं आउट हूँ क्योंकि 1.5% मैं नहीं दे सकता। Guys, for 1.5% right now, जो stage पे आपका business है, it doesn't make much sense. You have to make a better counter for this to work. $60 lakhs for 5%. Chalo, we'll do 60 lakhs, 6%. It's a deal. 10 crore valuation, which is 2 times your revenue. Okay? It's a good deal, guys. Take it. आपको इससे better deal नहीं मिलेगा। Okay, guys. Yeah. Deal. Congratulations. Good. Congratulations. All the best. Thank you.